Hello, welcome to my channel. We are going to do with this some basic concepts of chemistry. ठीक है, this is the part 2. Part 1 has been already uploaded to my channel. You can visit it if you haven't visited it before. So it is the part 2 where we are going to do about the physical quantities. There are several topics which I will tell you today. The first topic we are going to deal with the physical quantities and how it is measured in our chemistry. Okay, so the first topic is the physical quantities. Now, what are the physical quantities? So, the quantities that can be measured are called physical quantities. All the measured quantities are called physical quantities. So, if we take an example like time, our mass, everything, time can be measured. Time is measured in second. Okay, time is measured in hour. It is measured in minutes. So it is a measurement quantities. And one more thing we can add up to our definition, that is the physical quantities are all those quantities which can be measured and which can be measured through physical instruments. Like we are measuring the time. So what the thing we are using to measure it? We are using a clock. So it is measured by a physical instrument like mass. Mass is measured in kilograms. These are the units. In the units in which we are measuring it. Next, we have types of physical quantities. Now, the first type is our fundamental quantities. Now, the first thing is our fundamental quantities. Now, a set of physical quantities which are completely independent of each other, but all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities is called set of fundamental quantities. Now, fundamental units are those units which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into any other units. The fundamental quantities. Okay, first we will explain this much part, that what does it means. So, basically, a fundamental quantities are like, if we are saying लेंथ, सो लेंथ होती है. अब आप इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. यह लेंथ किसी यूनिट से मिलकर नहीं बनी. और लेंथ का हमने डिनोशन जो एल दिया है, वो किसी ने लेंथ का जो डिनोशन है वो किसी पे बेस्ड नहीं है. वी हैव गिवन इट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेम कि वो लेंथ है. ओके, तो लेंथ जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, यूनिट है. द नेक्स्ट हमने बोला कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर. जैसे हमने इसकी यूनिट ले ली मीटर. अब मीटर कहीं से आया है, किसी चीज़ से डिराइव हुआ नहीं. एक हमने इसकी ऐसा यूनिट मानी है. वी हैव एज्यूम इट, वी हैव टेकन एन एजम्पशन ओवर हियर. ठीक है, अब लेंथ की क्या हमने ले ली, मीटर एक क्या होती है, उसकी यूनिट होती है. अब मीटर फर्दर सॉल्व नहीं हो पा रही ना, या फिर आप मीटर से आप मीटर से दूसरी यूनिट डिराइव कर सकते हो. जैसे मैं मीटर से एरिया की यूनिट डिराइव कर सकती हूँ. मीटर से मैं पहले कुछ यूनिट नहीं ला सकते, मतलब मीटर किसी से आकर नहीं आया. ठीक है, तो मीटर इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ऐसी अगर हम बात करें, देयर आर टोटल 7 क्वांटिटीज दैट वी आर टेकिंग एज दी. इसे हमने ऐसा बेसिक ऐसा यूनिट्स भी बोला है, और हम इसे बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. यही सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर हमारी बेसिक क्वांटिटीज आर दीज: लेंथ, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास एंड आर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. वी हैव टेकन टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो 7 हमारे पास क्या आ जाती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाती है. इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद हमारे पास आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं दिया है, बट वी आर टेकिंग इट एज हमारे पास क्या है, एक और टॉपिक आता है, मतलब दूसरा पार्ट जो आता है दैट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ली गई है. जैसे हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी आई लेंथ. ठीक है, वी आर टेकिंग द सेम एग्जाम्पल लेंथ. अब मैंने पूछा एरिया कैसी क्वांटिटी है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, तो एरिया जो है उसका क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ
एरिया ऑफ, इफ आई एम सेइंग अबाउट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ भी क्या एक तरह से लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है ये क्या हुई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव हुई, इसलिए इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसमें आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, एरिया हो गया, फोर्स हो गया, देन देन वी हैव एरिया हो गया, फोर्स हो गया, बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी जो कि हमारी डिराइव क्वांटिटीज आएगी। जैसे मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, ठीक है, ये सब फिजिक्स का पोर्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। ना साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो साइंटिफिक नोटेशन जब हम किसी नंबर को n इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिख रही हूँ, दिस इज आवर साइंटिफिक नोटेशन। इफ अ p is a number it can be expressed as p is equals to 10 to the power a into 10 to the power x। x क्या हो सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इसको, जो ये है आपका a है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और x को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। मैग्नीट्यूड क्या है उस नंबर का, ठीक है। ये भी अगेन हमारा फिजिक्स में सेम टॉपिक कवर्ड है वहाँ भी। नेक्स्ट है ऐसे प्रिफिक्सेस, इसमें हम ज़्यादा कुछ डिटेल में देखेंगे। लाइक ऐसा यूनिट जो है, लाइक वी आर कन्वर्टिंग वन यूनिट, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻2 सेंटीमीटर। वही हमने यहाँ पे देख लिया 10⁻−2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। तो सबसे पहले इसमें हम इंपॉर्टेंट वाले लिख लेते हैं, 10⁻−1 डेके, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, एन भी यहाँ से आ जाता है, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो डेका में यहाँ स्पेलिंग एक एरर है, इसकी जगह होता है DECA, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर आर ऑल दो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं आते जितना इनका यूज़ है। फेमटो भी एक तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला एक सर्टेन डिजिट होता है प्लस एक अनसर्टेन डिजिट होता है, ठीक है। एक सर्टेन डिजिट होता है और एक अनसर्टेन डिजिट होता है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट आर दिस फिगर्स और द डिजिट दैट आर नोन विद द सर्टेनिटी प्लस 1 दैट इज अनसर्टेन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना, इफ़ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट इज, मैंने लिया कि 1 4 6 8 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने बोला 0 0 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वो किस बेसिस पे बता रहे हो कि इसमें 5 है इसमें 1 है, तो वो हम देखेंगे इन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल सेज दैट ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं दैट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के। उसके बाद कैपिटल जीरोज मतलब जीरो अगर किसी नॉन जीरो, इसका एग्जाम्पल देख लो 6 4 3 2, इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा 1 सॉरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब उसके बाद मैंने बोला कैपिटल जीरो आर सिग्निफिकेंट। कैपिटल जीरो मतलब कैपिटल जीरोज मतलब क्या होता है, व्हेन द जीरोज आर इन द बिटवीन, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3। ट्रेलिंग जीरोज आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट और अ बार अबव जीरो। मतलब अगर जीरो के ऊपर कोई बार है या फिर जीरो के बाद या फिर क्या है, या फिर जीरो के बाद पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 0 0 पॉइंट है, तो मतलब ये पूरा जो है यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल पॉइंट है। तो ये जो इसमें है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट वहीं 1 2 0 0 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें हम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। नेक्स्ट है लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो जीरोज आगे होते हैं, लीडिंग जीरोज मतलब तो जैसे हमने वाला एग्जाम्पल लिया था, तो इसको लीड कर रहे हैं, तो ये वाले क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिजिट्स। अगर मैंने बोला 1 पेन, इफ आई एम
टेलिंग अबाउट वन पेन. अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने बोला वन पेन, तो वन पेन क्या हो गया? वन पेन एक, इसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने भी हो सकती है, क्योंकि मैं 1 × 10⁻8 कुछ भी लिख सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 12 पेन बोल रही हूँ, तो 12 पेन में भी यहाँ 10⁻∞ लिख सकती हूँ. तो ये हमेशा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा? इन्फिनिटी. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के इस तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, और ले लें, तो मैंने बोला 10 पेन, 1 dozen egg, or if I said your 12 chairs, 2 person, these all will come under your infinite significant figures. ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, इसमें सारे रूल्स इस तरीके से बताएं. ये वाले जो हैं, दिस इज योर लीडिंग जीरोस, चेंजिंग इट, ओके. ये वाले जो हैं, दिस इज योर लीडिंग जीरोस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. बिटवीन में जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा. दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या है? आपका जीरो है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर. ट्रेलिंग जीरो मतलब आखिरी में, ट्रेलिंग जीरो मतलब एंड में. ये जीरो काउंट होगा, अगर इसमें पॉइंट होता तो ये काउंट होता, अदरवाइज दिस विल नॉट काउंट. तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया. ठीक है, यहाँ पे यू कैन टेक सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. 7 3 4 6.8 पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको फाइंड करने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, 3 4 6 0 0. थर्ड 4 0 0 8. फोर्थ, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. फोर्थ में ले लिया, आई एम टेकिंग 0.006. ठीक है, ये रुको, चलो 7. 5 में आई हैव टेकन 008. इन 6th आई एम टेकिंग इट एज, देखो एग्जाम्पल ले लिया 7 चेयर. चलो 7 डॉग, डी बन गया तो 7 डॉग ले लिया. ठीक है, नेक्स्ट है अपना लॉज. अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई लॉज की. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फर्दर पार्ट में डिवाइड है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. उसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, एक और लॉ बचता है, मल्टीपल प्रपोर्शन हो गया. टोटल 6 लॉज हैं. ठीक है, एक हो गया कंजर्वेशन मास, कांस्टेंट प्रपोर्शन. कांस्टेंट प्रपोर्शन की जगह डेफिनाइट प्रपोर्शन भी यूज होता है. मल्टीपल प्रपोर्शन, एवरेज, एवोगाड्रो नंबर, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. ठीक है, एक होता है लॉ गे-ल्यूसिक्स लॉ, गे-ल्यूसिक्स लॉ. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 लॉज हैं. सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपका वो डेफिनाइट प्रपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रपोर्शन, तीसरा मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ है आपका गे-ल्यूसिक्स लॉ. ठीक है, फिफ्थ वाला आपका हो जाएगा एवोगाड्रोस लॉ. और 6th आ जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग जा रही है वैसे, यू कैन मैनेज इट. सबसे पहला है लॉ ऑफ केमिकल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ केमिकल प्रपोर्शन क्या कहता है? तो दिस लॉ स्टेट्स दैट according to this law the mass can neither be created nor be destroyed in any balanced chemical reaction, but one form is changed in a chemical reaction. Total mass before reaction remains same. In a chemical change, total mass
बिफोर यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया, दैट इज रिएक्शन, ठीक है। बिफोर रिएक्शन इट रिमेन्स सेम। अब लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन कहता क्या, देखो जो मास ऑफ टोटल मास ऑफ आपका रिएक्टेंट होगा ना, वही इक्वल होगा हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। जितना मास आपने रिएक्टेंट में लिया है, जितना मास आपने रिएक्टेंट में लिया है वही आपका प्रोडक्ट में आएगा। ना तो मास क्रिएट होता है, ना तो मास क्रिएट होता है, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास दोगे उतना ही मास आएगा। समटाइम्स आपको लगेगा आपने जितना मास दिया उससे कम मास आपको मिल रहा है, आधा मास आपका गैस बन के चला जाएगा, ठीक है। ये लॉ में एक आपके पास वो आ जाता है, ये लॉ एक केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, दैट इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी हर जगह ये लॉ आपका एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला अब इसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें हमने जो पढ़ा अभी, उसमें हमने क्या बोला है कि ये लॉ किसमें एप्लीकेबल नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं। अब यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल लिया गया, 100 ग्राम ऑफ लिया है। इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने क्या करा, बर्न करा, तो हमें क्या मिला, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। मर्क्यूरी मिला 93 ग्राम्स और ये मिला 70 ग्राम्स, तो ये इसका हमने टोटल करा तो 100 ग्राम हमारे पास आ गया, ठीक है। वही हमने बोला कि मास क्रिएट नहीं हो सकता, ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। हम एक और एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। इसे सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब टेक्स के H2 का मास क्या हो गया, 10 ग्राम्स, और O2 ये आपका O2 है, O2 का मास क्या हो गया, O2 का, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर करके ले रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना। O2 का मास हम लोग ने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम्स, या तो चलो अपन इसका मोलर मास के हिसाब से देख लेते हैं। H2 का मास कितना होता है, H2 का 1, और 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 4, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 2 ज़ा, क्योंकि यहाँ डबल है तो 16 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, बार आगे 2 भी है, तो ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा, पता होगा आप लोगों को। ऑक्सीजन का हम डबल करेंगे तो दैट विल बी अगेन 32, तो 4 प्लस 32 यहाँ पे आ जाएगा 36 ग्राम्स, यहाँ भी आपका आ जाएगा 36 ग्राम। तो ये देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ गया मास ऑफ प्रोडक्ट के। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर टू बी फाउंड टू हैव अ कांस्टेंट सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हो गई है, मिस्टेक लिख दिया है एक जगह। ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव अ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ऑल केमिकल कंपाउंड्स वेट all chemical compounds are found to have constant composition of elements irrespective of their method of preparation or sources, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2 का एग्जाम्पल लिया गया है, इट इज़ नॉट वर्किंग यार। H2O का एग्जाम्पल लिया गया है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2, मतलब होता 1 है बट यहाँ पे डबल है हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो गया 2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ये रेशियो है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो ये हो गया 2:16, जिसका इक्वल आ गया 1:8। अब इसका मतलब क्या होता है, आप कहीं का भी हाइड्रोजन ले लो, सॉरी आप कहीं का भी वाटर ले लो, उसका जो मास रेशो आएगा इस H2O के हर एक एलिमेंट्स का, जब हमने मास रेशो निकाला तो वो जो रेशो आता है ये कांस्टेंट होता है। अब आप कहीं का भी H2O ले लो, आपके पास 1:8 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे डबल है इसलिए 32,
तो इट इज़ इक्वल्स टू 3:8। अब ये जो 3:8 है, अब आप कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आपको सेम मास ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने देखा कि आपका जितना मास है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, बाय मास अगर ये 1 है तो बाय मास 1:8 ही आएगा। वी हैव सीन इट। इसमें भी हम क्या निकाल रहे हैं? मास रेशो निकाल रहे हैं, ध्यान रखना ये बात। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? हमने हमारे 2 लॉ देख लिया, अब तीसरा है। पहला लॉ कह रहा था, एक बार रिकैप देखो। पहला लॉ कह रहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। दूसरे लॉ ने क्या बोला कि जो आपका कंपाउंड है उसके जो एलिमेंट्स का आप मास रेशियो निकालोगे वो हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप उसके बाद कहीं का भी H2O, कहीं का भी CO2 ले लो, आपको 1:8 H2O का और 3:8 CO2 का ही मिलना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? जब एक एलिमेंट कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, जब एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, तो जो मास होगा एलिमेंट्स का इन विच दे कंबाइंस विद द कांस्टेंट मास ऑफ द अदर्स विद द मेयर्स ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल हमने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन जो होगा रेशो मास ऑफ ओ। जैसे देखो एन रेशो आपका क्या लिया आपने? ओ। ठीक है, एन रेशो ओ लिया। अब एन का क्या हो गया? 14:6। अब इसका जब आपने मास रेशो किया, देखो 14:16 आ रहा है, तो इसमें क्या कर दो? जो नंबर आपका स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड कर दो, तो आपका ये आ गया 1:1.143। ठीक है, काम करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मतलब। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? 12:16, 12:32। अब यहाँ पे जो 12 इसको कांस्टेंट कर दिया, तो जो आपका 16:32 है, देखो 12:16 जो हो जाएगा इट विल इक्वल्स टू 3:4। ये हो जाएगा 12:32, दैट इज 3:8। अब ये जो 4 और 8 है, अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4:8 विच इज इक्वल्स टू 1:2। तो मतलब इन दो का तो हमने क्या कर दिया? रेशो है। ठीक है, इन दोनों का हमने जब मास रेशो निकाला उसके बाद हमें एक क्या मिल गया? कांस्टेंट, दैट इज 4:8। हमें क्या मिल गया? एक कांस्टेंट मिल गया। तो इनका जब हम रेशो निकालते तो हमेशा क्या है? एक सिंपल होल नंबर रेशो दिया करता है। नेक्स्ट है गेल-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जब भी आपके वॉल्यूम कंबाइन होंगे, देखो गैसेस कंबाइन होगी होल नंबर रेशियो में, तो जो वॉल्यूम प्रोवाइड होगा इसमें एक चीज़ याद रखना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी आप अपना टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो, तो आपका जो गैसेस का वॉल्यूम होगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, वो फिक्स्ड होगा। इसमें शायद सारे लॉज नहीं गिवन है। See, I have taught you law of constant proportion. See, constant proportion बता दिया, डेफिनाइट हो गया, गेल-लुसिक्स लॉ हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, एवोगाड्रोस लॉ और रेसिप्रोकल लॉ। इन 2 लॉ को हम अपने डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ टुडे वी हैव ओनली दिस मच। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वी हैव डिस्कस, गेल-लुसिक्स लॉ एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी हमारे पास यहाँ पहले 2 लॉज बच रहे हैं। 2 लॉज हम पहले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 लॉज जो बचे हुए हैं हम वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देख लीजिए, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, देन वी हैव average atomic mass, then we have average atomic or mean mass,
ये सब हम क्या करेंगे हमारे लास्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. टिल दैट टेक केयर. पार्ट 3 विल कमिंग सून. और अभी सिर्फ इतना ही है. ओके. And if any mistake or if anything which I have done wrong you are according to you, please tell that also in the comment section, and like the video, subscribe it, and thank you for watching. Take care. Bye.